Assalamu alaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 5th. I hope you all are good. Today we are going to start our new lesson number 18 from chapter number 7, Agriculture and Irrigation in Pakistan. Dear students, today our main topics are first one is agriculture, second crops, third one is types of crops. Dear students, today our learning outcomes are you can define the agriculture, you can explain the Pakistan's crops, you can define the food crops, and you can explain the importance of cash and food crops. Our first topic is agriculture. Basically, agriculture is the process of cultivation of land or soil for the production purpose. यानी प्रोडक्शन की खातिर या कुछ चीज़ें बनाने के लिए या पैदा करने के लिए जो हम कल्टीवेट करते हैं लैंड को या सॉइल को कल्टीवेट करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स डेवलपमेंट 48% of labor force is engaged directly with the agriculture. So it is the main source of living or income for of the major part of the economy population. Crops. Much of the land in Pakistan is not fertile, like Balochistan and northern hilly areas are not suitable for crops. Punjab is the best area for the crops because of fertile soil and irrigation system. Total cultivated area in Pakistan is 57%. There are two types of crops. First one is kharif crops and second one is rabi crop. Kharif being the first sowing season starting from April to June and is harvesting during October to December, including rice, maize, sorghum, pearl, millet, cereals, pulses, soybean, groundnuts, cotton, etc. And Rabi is the second sowing season begin in the October to December and is harvested in the April to May. Include wheat, barley, oat, grams, linseed, mustard, means oil seeds, etc. Our first type of crop is food crops. Wheat is the most important food crop of Pakistan. More food crops of Pakistan are barley, maize, millet, rice, etc. बेसिकली फूड क्रॉप्स वो होती हैं जो मुल्क की ज़रूरत के लिए या आपकी कम्युनिटी की ज़रूरत के लिए जो उगाई जाती हैं या डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो उगाई जाती हैं उन्हें फूड क्रॉप्स कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज कैश क्रॉप्स. Cotton, rice, wheat, sugarcane, tobacco, all seeds crops, especially sesame seeds, are most important cash crops of Pakistan. जैसे कि फूड क्रॉप जो होती है मुल्क की ज़रूरत के लिए उगाई जाती हैं, इसी तरह कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो सेल करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए उगाई जाती हैं. और हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन है और उसके बाद शुगर केन और टोबैको. Our first food crop is wheat. Wheat is one of the main agriculture crop in Pakistan. Wheat is also called a staple food of Pakistan. With 80% of farmers growing it on an area of around 9 million hectares, close to 40% of the country's total cultivated land during the winter or rabi season. Next one is rice. Rice is grown in fertile lands of Sindh and Punjab region, where millions of farmers rely on rice cultivation as their major source of employment. Among the most famous varieties grown in Pakistan include the Basmati, known for its flavor and quality. पाकिस्तान इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस वैरायटी. इसके साथ साथ पाकिस्तान राइस जो है उसको एक्सपोर्ट भी करता है. नेक्स्ट फूड क्रॉप इज मेज. The bulk 97% of the total grain production comes from the two major provinces Punjab and KPK. Very little 2 to 3% maize grains are produced in the province of Sindh and Balochistan. Maize is also an important crop of AJK with about 0.122 million hectare of maize being planted during autumn. Our next crop is millet.
In the Pakistan, pearl millet is sown on 1.2 million acres and its production is 0.3 million tons. This crop is mostly sown in rain-fed areas after rain and is an important coarse grain crop in Pakistan. मोस्टली मिलेट यानी ज्वार और बाजरा जो है वो एज अ सीरियल क्रॉप भी यूज होती है, उसके साथ साथ फीड के लिए, एनिमल फीड के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज pulses. As you know, pulses are a source of protein and also grown during spring season mainly in southern Punjab and Sindh province. Punjab is the major pulses growing province that alone accounted for 88% area and 85% of the total pulses production. Next one is oilseeds. In Pakistan, mainly two types of oilseeds crops are grown. For example, traditional जो ग्रो की जाती है उनमें मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम एंड लिन सीड्स होते हैं. एंड नॉन ट्रेडिशनल जो की जाती है उनमें सनफ्लावर, सनफ्लावर, सोयाबीन एक्सेट्रा शामिल है. Soybean, groundnuts, and sunflower are major winter oilseeds sown in June and July and harvested in October and November. Our next topic is cash crops. Our first cash crop is cotton. Cotton production supports Pakistan's largest industrial sector, including 400 textile mills, 7 million spindles, 27,000 looms in the mill sector, 700 wear units, 4,000 garments units, 650 dyeing and finishing units. Pakistan exports raw cotton as well as textiles, cotton, cotton yarn, and manufactured clothing to Bangladesh, the European Union, Turkey, Russia, the USA, and the Middle East. यानी कॉटन जो है पाकिस्तान की लीडिंग एक्सपोर्ट है. सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है हमारी कॉटन है. और कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर जो है उसकी जरूरत होती है, उसके साथ साथ मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है. बेसिकली जो कॉटन को ग्रो किया जाता है जिन एरिया में, उसमें साउथ ईस्ट पंजाब और सिंध के काफी पार्ट्स जो हैं वो शामिल हैं. और पाकिस्तान प्रोड्यूस 11.9 मिलियन बेल फॉर कॉटन ड्यूरिंग 2017 टू 18. और पर बिल वेट जो होता है वो 170 kgs होता है. Our next cash crop is sugarcane. Sugarcane is also most important cash crop after the cotton. Sugar and gur are made from the sugarcane. Sugarcane के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है. थ्री मेजर शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स जो हैं हमारे पंजाब, सिंध एंड केपी की हैं. पाकिस्तान जो प्रोड्यूस करता है वो 83.3 मिलियन टन्स के करीब जो है जो शुगर केन है उसको प्रोड्यूस कर रहा है. शुगर केन इज grown on an area of more or less 1 million hectares in Pakistan. और पंजाब 62% इसमें शेयर कर रहा है, सिंध में 26% और जो आपका केपी के है उसमें 16% जो है जो शुगर केन है उसको उगाया जा रहा है. Our next crop is tobacco. There are 75,000 tobacco growers in Pakistan. Out of these, more than 45,000 growers are located in KPK. यानी सबसे ज़्यादा कास्ट जो टोबैको की वो हमारे केपीके के अंदर होती है. There are in the districts of Swabi, Mardan, Charsadda, पेशावर और बन्नर एक्सेट्रा. टोबैको जो है उसे और एक्सपोर्ट किया जाता है और ज़्यादातर टोबैको जो है वो सिगरेट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इस्तेमाल होता है. Our next topic is livestock. Livestock plays an important role for the uplift the rural economy as it is considered as the good source of employment generation in rural population and thus helpful poverty alleviation. Cattle mainly provide farm power. Buffaloes are kept for milk for home consumption and sale, and sheep and goats are for meat and are easily
Convertible assets. Camels and donkeys are for the transportation. Pakistan is one of the world's largest milk producer. In 2017 to 18, the milk production was 57,819 million tons. Two-thirds of this comes from the buffaloes and the rest from the cows. बेसिकली पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, फेवरेबल है. टू मीट द नीड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द स्मॉल फॉर्म्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड लार्ज स्केल फॉर्म्स which have state of the art technology. पाकिस्तान जो वो एक्सपोर्ट करता है मीट को बहुत सी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि हलाल मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. लाइक गल्फ स्टेट्स जो है हमारी या यूरोप जो उसके अंदर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है. उसके साथ साथ मीट, मिल्क, फैट, बटर, चीज और घी वगैरह जो है उसे भी एक्सपोर्ट किया जाता है. Dear students, today your home task is question number 1 to 5. Question number 1 is, what makes Punjab the best farming area in Pakistan? Answer is, Punjab is the best farming area because of its fertile soil and canal irrigation system. आपसे सवाल किया जा रहा है कि पंजाब को ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेस्ट बनाती है, बेस्ट फार्मिंग एरिया बनाती है पाकिस्तान का. तो उसमें अगर आप आंसर की बात कर रही हैं तो आंसर में आपका फर्टाइल सॉइल और इरिगेशन सिस्टम आएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बेस्ट फर्टाइल सॉइल है और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इरिगेशन सिस्टम है, बल्कि बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है वर्ल्ड का पंजाब के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. Give an example of each. Answer is, kharif crops are grown in summer, for example cotton and rice, and rabi crops are grown in winter, for example wheat. दो टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, एक खारिफ और एक रबी, और ये सीजन्स के लिहाज से डिवाइड की जाती है. खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं वो समर्स के अंदर जो है उगाई जाती हैं, जबकि रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर के अंदर उगाई जाती हैं. अगर खारिफ क्रॉप्स की कोई एग्जांपल देखें तो उसमें कॉटन और राइस आती हैं जिन्हें गर्मियों में उगाया जाता है, और रबी क्रॉप्स की अगर एग्जांपल देखें तो उसमें वीट आती है जिसे सर्दियों में उगाया जाता है. Question number 3 is, which crops makes up Pakistan's largest export? Where is it grown? Answer is, cotton is the Pakistan's largest export crop. It is grown in southeast Punjab and parts of Sindh. कॉटन जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है और साउथ ईस्ट पंजाब और सिंध के एरिया के अंदर जो है या सिंध के काफी पार्ट्स के अंदर जो है इसे काश्त किया जाता है या उगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ कैश क्रॉप एंड अ फूड क्रॉप एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच. Answer is, a food crop is one that is grown to feed the community, for example wheat, rice, sugarcane, etc. And cash crop is grown for sale or export, like cotton, tobacco, and also sugarcane are cash crops. यानी आपने कैश क्रॉप और फूड क्रॉप जो है उसके दरमियान डिफरेंस करना है और एक एक एग्जांपल देनी है. तो फूड क्रॉप बेसिकली वो होती है जो डोमेस्टिक नीड के लिए या आपकी जो सोसाइटी की अपनी या कम्युनिटी की जो नीड है या उसको फीड करने के लिए जो फसल उगाई जाती है या जो क्रॉप्स काश्त की जाती हैं, ग्रोन की जाती हैं, वो जो है वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं. लेकिन वो क्रॉप्स जो सेल आउट करने के लिए या एक्सपोर्ट की नीयत से उगाई जाती हैं वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं. फूड क्रॉप्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें वीट, राइस, शुगर केन आता है, जबकि जो आपकी कैश क्रॉप है उसमें कॉटन, टोबैको और शुगर केन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. Our next question is question number 5. Why is livestock an important part of agriculture? Answer is, livestock is an important part of agriculture as it is reared for meat, dairy products, hides and skins. Almost all small farms in Pakistan also use cattle to work the land, help till the soil and provide transport for farmers. लाइफ स्टॉक जो होते हैं वो एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर. और बेसिकली जो जानवर पाले जाते हैं उन्हें उनसे जहाँ डोमेस्टिक यूज के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है वहाँ वो हमारी फूड नीड्स जो है उनको भी पूरा करते हैं.
जैसे मीट प्रोवाइड करते हैं, हमें एग्स मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हाइड्स एंड स्किन्स को हम यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। उसके साथ साथ जो स्मॉल फॉर्म्स होती हैं, चूंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के यूज़ किए जाते हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो सॉइल को टिल करने के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स को। उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह अपनी मटेरियल को, अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी फार्मर्स जो हैं वो कैटल्स का यूज़ करते हैं। Okay, dear students, let's start our bookwork page from page number 67. First one is experts recognize crops and plants from their important features. Can you guess which crop is contained in each of the box below? आपको नीचे कुछ boxes दिए गए हैं और उसके अंदर थ्री जो क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटीज कह लें या फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं, और आपको उन फीचर्स को देखते हुए बताना है कि ये कौन सी क्रॉप है। Like first one is need high temperature, need plenty of water, a cash crop used to make sugar and gold. जैसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं चीनी और गुड़ बनाने के लिए हमें कौन सी क्रॉप जो है वो उगाने की जरूरत होती है, और वो हमारी कैश क्रॉप भी है, तो फौरन से हमारे माइंड में शुगर केन का नाम आएगा। तो यानी हमारे फर्स्ट बॉक्स के अंदर शुगर केन आएगा। शुगर केन को हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और ये हमारी कैश क्रॉप भी है, और उसके साथ साथ चीनी और गुड़ बनाने में भी काम आती है। नेक्स्ट वन इज सेकंड जो है हमारा इरी बासमती देसी आर वैरायटीज ऑफ दिस क्रॉप, grows in warm climate, needs lot of water, it is also exported especially to the Middle East. अब जैसे ही हमारे सामने एरी, बासमती और देसी टाइप के नाम आएंगे, तो बासमती से हमें फौरन से हमारे माइंड में चीज आएगी कि ये राइस का जिक्र हो रहा है। उसके साथ साथ राइस को उगाने के लिए हमें हॉट क्लाइमेट, बहुत ज्यादा वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये क्रॉप हमारी राइस है। थर्ड वन इज a good source of protein, grows well in sandy soil, needs well drained soil. अब थर्ड वन जो है, जैसे कि थर्ड वन के अंदर प्रोटीन का जिक्र हो रहा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन का, तो फौरन से हमारे माइंड में पल्सेस आएंगी। दालें ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, और सैंडी सॉइल के अंदर इजिली जो है इनको ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज हार्डली सीयर क्रॉप्स, कैन ग्रो इन पुअर सॉइल, हैज टू मेन वैराइटीज, नीड्स लिटिल वाटर, यूज्ड मेनली फॉर एनिमल एंड बर्ड फीड्स। और इसके अंदर हमारा मिलेट आएगा, जहाँ हम एनिमल और बर्ड फीड्स का जिक्र आएगा तो बाजरा और ज्वार का माइंड में हमारे आएगा, और उसके साथ साथ ये एज अ सीरियल भी यूज होते हैं, एज अ ओट भी हम इनको यूज करते हैं, तो यानी फोर्थ के अंदर हमारा मिलेट आएगा। नेक्स्ट वन इज grows in mild temperature, little rainfall, staple food sown in October and November, over 22 million tons yield per year. अब जैसे ही स्टेपल फूड का जिक्र आ रहा है फिफ्थ वन के अंदर, तो स्टेपल फूड से हमें फौरन पता चल जाएगा कि हमारा स्टेपल फूड जो है वो वीट है, और ये वीट का जिक्र हो रहा है। और वीट चूंकि सर्दियों में जो है उसको उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है इसको बोया जाता है, और इसके साथ साथ इसको बहुत मिड सा टेम्परेचर चाहिए होता है, और थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए होती है। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ है, पाकिस्तान मेन कैश क्रॉप, नीड्स हाई टेम्परेचर, moderate rainfall, exported as yarn, fabric and clothing. Annual production is about 13 million bales. यानी अब हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी कैश क्रॉप्स जो है वो कॉटन है, और उसके साथ साथ कॉटन जो है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, उसके साथ जॉन, फैब्रिक और क्लोथिंग वगैरह के अंदर भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो फौरन से हमारे माइंड में कॉटन आएगा। Guidelines for parents. Dear parents, all the main points discussed in the lecture. Make sure students listen the lecture carefully. Question number 1 to 5 discussed in the lesson. So ask your child to do 1, 2, 3, 4 and 5 all questions on notebook. Make sure that spelling should be correct while writing answers. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, I hope you understood all the topics and questions very well. Complete your home task on time and learn it. Thank you.